देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फर्स्टे तुम बदल के हो तुम्हें सजदा हमारा है, फर्स्टे तुम बदल के हो तुम्हें सजदा हमारा है। Are you ready with it? Yes, sir. Focus it down. So, English language you can pursue your independently. Sir, I am comfortable in both Indian. Okay. So, Vikram, first introduce yourself. I am Vikram Pratap. I am from Madhya Pradesh, Palanpur city, and my father is a principal of government teacher, and my mother is a housewife. So, Vikram, do you know how Simla was connected to the Britishers? Yes, sir. It was the British summer capital of the British. Okay. Vikram, why do you want to join Indian Army? Sir, I want to join Indian Army to get Paramveer Chakra. Do you know what is Paramveer Chakra? Yes, sir. It is the highest military award given to an officer or a soldier during wartime. So, Vikram, who is your real life inspiration? Sir, my real life inspiration is my father. Why, Vikram? Sir, because of his discipline, punctuality, and most important, patriotism. What do you mean by patriotism? Sir, patriotism means to feel towards your nation, to devote yourself to your nation. Okay? Very nice, Vikram. Suppose you are posted okay, and they is selling from Pakistan. So, how you are going to react with that? Sir, I'll follow all the instructions given by my commanding officer because it is my supreme duty at that time. Okay, gentlemen, have you obtained in army? Yes, sir. What are the OIQ? What, sir? OIQ, obviously like quality. Sir, there are so many qualities of an officer, such as discipline, leadership, teamwork, unity, and the most important, patriotism towards his nation. The difference between a soldier and an officer. Sir, according to me, there is no difference between a soldier or an army officer. It is like a brain and body. Brain is like an officer and body is like a soldier. So, Vikram, which game you prefer in your school day? Sir, I used to play football in my school time. What? So, because it is a team game. Good, Vikram. If you don't get selected in SSB, what you are going to do next? Sir, I don't have any other plan because I just want to get the army only. Doctor, I have a doubt. What? I want to check his intelligence and so Vikram, Yes, sir. Vikram, this is a blank paper and please make it sign on this. If you sign on this, I will promise that you will be selected in this SSB. Then, Vikram, are you going to read? yes, It's a blank paper. yes, sir, I will do it. You confirm? Yes, sir. मैंने दिखाया कि कैसे विक्रम बत्रा सर ने अपना इंटरव्यू पास किया था। नाउ विद हाई रिगार्ड आई वुड लाइक टू इनवाइट कैप्टन उमेश कुमार शर्मा सर अपॉन द स्टेज फॉर देयर वर्ड्स ऑन कारगिल विजय दिवस। प्रधानाचार्य जी, मेरे साथी लेफ्टिनेंट नितिन चौहान जी और मेरे कैडेट्स और मेरे प्यारे छात्रों और मेरे जो साथी हैं सभी को इस विजय दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तो मैं कुछ आपको कारगिल विजय दिवस हम क्यों मनाते हैं, कैसे कारगिल युद्ध हुआ, उसके बारे में 2-3 मिनट में आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कारगिल क्या है, कारगिल कहाँ पर है और इसका नाम कारगिल युद्ध क्यों पड़ा। तो कारगिल जैसे पहले कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, कश्मीर का पार्ट था, कश्मीर में आता था, लेकिन जब से ये कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हुए तो आज एक कारगिल एक जिला है
और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक भाग है। और इसमें जो कारगिल है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पर जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिसको टाइगर हिल या अदर नाम दिया गया है, वो बहुत हाइट पर है। कम से कम उस चोटियों की हाइट 18,000 फीट, 16,000 फीट, 17,000 फीट है। और वहाँ पर जो टेम्परेचर, सर्दियों में टेम्परेचर होता है वो -48 डिग्री तक हो जाता है। हम यहाँ पर रहते हैं, अभी सर्दियाँ आएंगी, हमारी विंटर वेकेशन हो जाती है, लेकिन बट हमारे जो सैनिक हैं, हम उतने में हमें बहुत ठंडा लगता है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं वो 48 डिग्री, -48 डिग्री पर भी वहाँ पर सीमा की सुरक्षा करते हैं। तो ये जो आपका कारगिल है वो लद्दाख में है, और जो कश्मीर है, श्रीनगर है, उससे 205 किलोमीटर जब लद्दाख की तरफ जाएंगे तो उस रोड पर ये पड़ता है, और श्रीनगर से ये 205 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे युद्ध हुए, कम से कम 4 युद्ध हुए, 71 का युद्ध हुआ, लेकिन ये जो कारगिल का युद्ध था वो सबसे अलग था, हटकर था। क्यों? क्योंकि जैसे भैया ने बताया था कि एक समझौता हुआ, क्योंकि बहुत ठंडा होता है सर्दियों में भारत पाकिस्तान के बीच, और ये समझौता हुआ था कि ये जो आपका ये कारगिल का एरिया है, ठीक है, जितना आप गश्त करते हैं, आपके बंकर्स बने हुए हैं, तो सर्दियों में ये हस्ताक्षर हुए दोनों ही देशों के कि आप सर्दियों में यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में -48 या 50 डिग्री जो टेम्परेचर में रहना बहुत टफ होता है। तो ये हस्ताक्षर के बाद भारत निश्चिंत हो गया। उस टाइम माननीय जो प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उन्होंने, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो नवाब शरीफ थे, तो एक अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व बहुत ही सरल स्वभाव का रहा है। उन्होंने ये सोचा कि ये हमारा भाई है पाकिस्तान, और इससे हमें, ये हमारी भाई है, उससे हमें समझौता करना चाहिए और अपने भाई को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने एक अच्छी पहल करी थी, इस समझौते पे जो समझौता हुआ था, लेकिन नवाब शरीफ पाकिस्तान है, जो आस्तीन का सांप होता है वो आस्तीन का सांप ही होता है, लेकिन कभी भी नवाब शरीफ ने जो इसको घुसपैठ करा दी। भारत ने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो जो भारत के बंकर थे उन पर 5,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने उस पर कब्जा कर लिया, 5,000। लेकिन हमें पता नहीं चला, भारत को पता नहीं चला, भारत को निश्चित था कि भाई दोस्ती है और एक पहल अच्छी करी है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और ये हमको मित्र मानते रहे, लेकिन उसने हमारे भारत की पीठ में छुरा मारा। तो एक कैसे पता चला इसका? क्योंकि इसका मोटिव क्या था कि जो हमारा कश्मीर और लद्दाख है उनको दोनों को ही को जो हमारा कनेक्शन हटाना पाकिस्तान का और कश्मीर पे कब्जा करना उसका मोटिव था। तो उनके बंकर में बैठे थे, भारत निश्चिंत था, लेकिन एक चरवाहा आया वहाँ पर एक स्थानीय निवासी था, उसने उन बंकरों में कुछ हलचल देखी। उसे पता था कि ये जो भारत है इस टाइम उनका कोई सैनिक नहीं रहता है इन सर्दियों में, लेकिन बट आज इसमें हलचल कैसी है, तो उसने उसकी जो सूचना दी वो भारतीय सैनिकों को दी इस चरवाहे ने, और हमने सोचा होगा भारत में कुछ लोग होंगे, तो ऐसे ही उन्होंने 5 सैनिक टुकड़ी के साथ, जिसमें कैप्टन सौरभ कालिया और अपने 4 सैनिकों के साथ वो टुकड़ी ये देखने के लिए गई कि वहां पर ऐसा क्या हो रहा है। तो वो निश्चिंत थे, उन्हें पता ही नहीं था कि इतना बड़ा षड्यंत्र पाकिस्तान ने कर रखा है, बट वो अनजान थे इस खतरे से। 5,000 सैनिक पहले से ही वहां पर बैठे हुए थे कि वो सामने से जा रहे थे निश्चिंत कि ऐसे कुछ होगा। उन 5 हमारे सैनिकों को जो कैप्टन कालिया थे उनको उन्होंने बंधक बना लिया पाकिस्तानी सैनिकों ने। उन्हें ये आभास ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और उनको इतनी प्रताड़नाएं दी, रियल में आपकी रूह कांप जाएगी यदि वो प्रताड़ना देख ली होती आपने। उनको जलाया गया,
उनके नेल्स निकाले गए, नाखून निकाले गए, उनकी आंखें फोड़ दी गई। फिर भी उन्होंने उनसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे पाकिस्तानी सैनिक कि कितनी फौज उस पार है जिससे उन्हें आसानी हो इस युद्ध को जीतने में, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं करी। उन्हें खूब टॉर्चर, उनके अंग पार्ट काटे गए बॉडी के, और धीरे धीरे करके उनके बॉडी के पार्ट काटे गए कालिया के, कैप्टन कालिया के और उनके सैनिकों के। लेकिन कैप्टन कालिया ने फिर भी उफ नहीं करी, बोले आप कितना ही मुझे प्रताड़ना दे दो लेकिन मैं एक भी जानकारी अपने सैनिकों की नहीं दूंगा। तो धीरे धीरे क्या है, उनका इतना प्रताड़ना, आंखें फोड़ दी, नेल्स, बाल सारे उखाड़ दिए, सारे काम। इतनी जब उनकी डेड बॉडी मिली तो वो देखने लायक नहीं थी। सब पूरा भारत उन डेड बॉडी पर रो रहा था, लेकिन भारत को इस घटना के बाद पता चल गया था कि छोटी मोटी घटना नहीं है, भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से यहाँ पर जो है पाकिस्तान ने वो कब्जा कर लिया है। और अब ये लड़ाई, ये 3 मई की बात है, 3 मई को थी, 8 मई को ये सारा इंसिडेंट हुआ, डेड बॉडी आई सामने, और पाकिस्तान ने, भारत ने ये सोच लिया कि ये जो है अब युद्ध की घड़ी है और ये युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया कि ये युद्ध, जितने भी युद्ध हुए हैं पाकिस्तान से, सबसे अलग हटके था। क्यों था कि जो पाकिस्तान था वो 16,000 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा हुआ था बंकर्स में, और हमारे सैनिक नीचे थे। यदि आप ऊपर बैठे हैं, ऊपर से मारना आसान है और नीचे से मारना, सामने वो जाएगा उस पर गोली एक भी नहीं बचेगा। तो 2 ऑप्शन थे भारत के पास कि या तो वो सामने से जाए या फिर पीछे से जाके चुपके से अटैक करेंगे। पीछे से इसलिए नहीं जा सकता था, 18,000 फीट की ऊंचाई, 16,000 फीट की ऊंचाई, उसको बिल्कुल एक 90 डिग्री एंगल पे उसे चढ़ना था उन सैनिकों को। अब इतना चढ़ना, कुछ सैनिक तो बेचारे जो लड़ाई नहीं लड़ सके, वो ऊपर से चढ़ते चढ़ते उनकी डेथ हो गई, शहीद हो गए। तो ये इसलिए कारगिल का युद्ध अपने आप में अलग हटके था कि दुश्मन ऊपर बैठा था, हम नीचे थे, लेकिन इतना आसान नहीं था। भारत को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब करा क्या जाए वहां पर, तो ये निर्णय लिया गया कि वहां आर्टिलरी जो तोपें होती हैं, और पहले ऐसे हम लड़ाई नहीं जीत सकते, वो सारा पहले सामान इकट्ठा करा जाए, तब उसके ऊपर अटैक करा जाए। तो हमारे ये भी निर्णय लिया गया कि कुछ एक जो टुकड़ी होगी वो सामने से जाएगी और 1 बाय 1 जितनी भी हमारी चोटियां हैं जो पाकिस्तान ने कब्जे कर रखा है उसको फतेह करेगी। तो उसमें हमारे बहुत सारे सैनिकों को उसमें लगाया गया, जिसमें अभी नाम आया 3 लोगों को कारगिल विजय में परमवीर चक्र मिला, 2 को मरणोपरांत और 1 को जीवनोपरांत, जीवित रहते हुए मिला। तो मरणोपरांत जिसको मिला, जो आज हमारे सामने जिनका फोटो लगा हुआ है, जिनको अभी हमने सच्चे मन से नमन करा, कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज कुमार पांडे, दोनों को ही बहुत जो है उनमें जज्बा भरा था। ओनली जो उम्र थी, ओनली 24 साल की, जैसे भैया ने बताया, और 24 साल की उम्र में बहुत जो जज्बा था देश के लिए, वो मर मिटने का था। कई सारे इंसिडेंट हैं, तो एक टुकड़ी ने सामने से, एक पीछे से जब हमला करा, एक टुकड़ी थी उस पे 51002 थी, उस पे बिना कब्जा किए हुए भारत इस जंग में कभी भी नहीं जीत सकता था। तो उसकी जो जिम्मेदारी दी गई वो कैप्टन बत्रा को दी गई। बत्रा ने उस चोटी को फतेह किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक स्लोगन बोला था जो पेप्सी का स्लोगन है कि दिल मांगे मौत। तो उनसे कहा गया, उस चोटी को फतेह करते समय जख्मी हो गए, और जख्मी होने के बाद भी उनके कैप्टन ने कहा कि आप वापस चले जाओ, आपका ट्रीटमेंट के लिए हम देख लेंगे। तो उन्होंने यही स्लोगन बोला था कि दिल मांगे मोर, अभी ये दिल भरा नहीं है मेरा, और मैं आगे भी इन चोटियों को फतेह करते रहूंगा। लेकिन बट जो नेक्स्ट चोटी को उन्होंने फतेह किया और अगली चोटी को फतेह करते समय उनको गोली लगी आमने सामने की, और वो शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद फिर नेक्स्ट जिम्मेदारी जो मिली, कैप्टन मनोज पांडे ने भी बहुत साहस और शौर्य का अपना परिचय दिया, और वो जो है शहीद हो गए। इसके बाद जो हमारे 2 परमवीर तीसरे जो थे, जिनका हम नाम आज यहाँ से लेना चाहेंगे, राइफलमैन संजय सिंह, वो उन्होंने भी कई चोटियों को फतेह किया, और इतनी गोली लगी थी कि उनका जो बॉडी था वो छलनी हो गया था,
खून बह रहा था। पाकिस्तानी सैनिक, उनके पास एक ही था कि ये पाकिस्तानी सैनिक थे बहुत सारे जो बंकर थे, तो जितनी डेड बॉडी पड़ी हुई थी भारतीयों की, तो एक ग्रेनेड मिला उन्हें, तो ग्रेनेड था वो फटा नहीं था, तो उन्होंने अपना ग्रेनेड जो था वो पास में रख लिया और वो डेड बॉडी की तरह जैसे डेड हो जाता है इंसान सजे लेटे रहे। पाकिस्तानी सैनिकों ने कहा कि देखते हैं कि ये जिंदा है कि मर गए या शहीद हो गए। तो उन्होंने देखा, तब भी उन्होंने संजय सिंह के बॉडी में 5-6 गोलियां मारी कि चेक करने के लिए कि ये जिंदा है या बच गया। लेकिन उन्होंने इतनी ब्लड बह रहा था, गोलियां लगी थी, 4-5 बुलेट खाने के बाद भी बिल्कुल नहीं हिले, सांस रोक के पड़े रहे। ऐसे वीर सैनिक, जब पाकिस्तानी सैनिकों को लग गया कि हाँ इनकी डेथ हो चुकी है, ये शहीद हो चुके हैं, तो उसने क्या करा, जैसे वो पीछे मुड़े और उन्हें जो ग्रेनेड था जो फटा नहीं था उसको तुरंत जो है निकाल के पेन और उसको उन पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर फेंका, और जितने थे वो कुछ पाकिस्तानी सैनिक इसमें जो है मर गए, और दूसरा जो है उसमें जो एक दो बचे थे उन्होंने, उनके पास जो राइफल थी उन्होंने उसको मार के और वो जो है वो उस चोटी में फतेह किया। जब वो वहां से नीचे स्लाइड होते हुए नीचे आए और उन्होंने देखा सैनिक वहां पर उनके भारतीय सैनिक थे, और भारतीय सैनिकों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, तो 2 से 3 महीने के बाद उनको होश आया, और उसके बाद उन्होंने देखा वो हॉस्पिटल में है। तब उनको इस वीरता के लिए उनको भी परमवीर चक्र, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारतीय सेना का, जो हर सैनिक के दिल में रहता है कि मुझे परमवीर चक्र मिले, तो उनको परमवीर चक्र प्राप्त किया। लेकिन ये तो हम 3 अपने जाबाज सैनिकों का हमने यहाँ पे जिक्र किया। ऐसे कितने सैनिक थे कि जो वहां पर शहीद हुए। हम देखते हैं कि इतिहास देखते हैं तो हमारे जो है 527 527 जो सैनिक थे वो हमारे अधिकारी, जो हमारे ऑफिसर थे और जो सैनिक थे वो शहीद हुए थे उसमें, और लगभग 1300 जो हमारे सैनिक थे वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे। भारत ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने यह स्वीकारा कि हमारे कुछ सैनिक मारे गए हैं, हमें इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट आई तो पाकिस्तान के लगभग 4000 सैनिक वहां पर मारे गए थे हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा। और पाकिस्तान की कायरता देखो, उन्होंने जो उनके सैनिक थे, हमारे जितने सैनिक थे उनकी डेड बॉडी जितनी थी, हमारे शहीद सैनिक थे उनका सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन पाकिस्तान के देखो कि जो सैनिक उसके लिए लड़े, उसके अपने पाकिस्तान के लिए उन डेड बॉडियों को भी लेने से पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हमारे सैनिक नहीं है, ये आतंकवादी हैं। तो ऐसी मानसिकता जो अपने सैनिकों के लिए रखता हो तो हमारा क्या सगा होगा। तो इस तरीके से हमारे कम से कम ये जो युद्ध था वो 2 महीने चला, और 2 महीने युद्ध चलने के बाद हमने उसमें फतेह हासिल की। और जभी से जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने एक घोषणा की, जो हमारे शहीद हैं उनको याद करते हुए, नमन करते हुए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को ये कारगिल विजय दिवस हम सेलिब्रेट करेंगे। ज्ञानदायी मशाले, देवतुल्य आचार्यों की टीम और हमारे कर्मठ नौजवान सभी छात्रगण, एनसीसी के कैडेट्स, कैप्टन उमेश, लेफ्टिनेंट निवेद जी और सभी सहयोगी कर्मचारी बंधु, आज हम सबके लिए गौरव का दिन, कारगिल विजय दिवस। लगभग 3 महीने उस ऑपरेशन में लगे, 8 मई से शुरू हुआ और 26 जुलाई को समाप्त हुआ। जैसा कि कैप्टन उमेश ने डिटेल विस्तृत जानकारी दी कि किस तरीके से यह युद्ध हर युद्ध से विपरीत था, क्योंकि जो ऊंचाई पर पाकिस्तान बैठा हुआ था, नीचे भारतीय सेना लगी, जितने कर्नल, ब्रिगेडियर, बड़े बड़े सेनापति मौजूद थे, सबकी पैनी निगाह उस युद्ध पर थी।
आपको आश्चर्य होगा कि इस कारगिल युद्ध को जीतने के लिए भारत ने पूरी दमखम लगाई थी और 2 लाख सैनिक भी थे। 2 लाख चारों तरफ से आगे पीछे के पहाड़ियों पर चढ़ करके उस पर मैनेज करना, एक जज्बा, एक जुनून, एक देश के लिए समर्पण और अपने भारत देश की सीमाओं की रक्षा करने का जो वर्चस्व हमारे वीर सैनिकों ने कायम किया, वह बेहद प्रभावी और साथ में प्रेरणादायी। मेरे जीवन काल में 2 युद्ध हुए, 1971 का और यह कारगिल का 1999 का। 71 का जो युद्ध था मैं बहुत छोटा था, लेकिन उसके बारे में सुनता रहता था, छोटा सा बच्चा था, उसकी जानकारी उतना नहीं समझ पाया। लेकिन 1999 के जो युद्ध था उसमें मैं 30 वर्ष का युवा, बैचलर युवा, वृंदावन में आचार्य की भूमिका में, उप प्रधानाचार्य की भूमिका में वहां पर था। और जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था, वास्तव में हम लोग के आंखों में आंसू। कारण क्या था? टीवी समाचार पत्रों में, टीवी दूरदर्शन पर, टीवी रिपोर्ट्स पर ये घटनाएं आती थी, फला कैप्टन शहीद हुए, सौरभ टाइगर के संग ऐसा हुआ, और इस तरीके के मन तो करता था कि चले जाएं, जाकर के सीमा पर जाकर के लड़ाई करें और जाकर के अपने आप को सिद्ध करके दिखाएं कि भारत देश हमारा देश है और इस पर किसी की बुरी निगाहें टिकने नहीं। ऐसा जुनून था उस समय पूरे देश में, हर भारतीय के साथ में एक पक्ष और था जो पाकिस्तान के संग जुड़ा हुआ था, जिसको कि मुसलमान कहते हैं। वह पूरा दंगा करने के मूड में था, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बनारस हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो आगरा हो, हर जगह दंगा का स्वरूप हो चुका था कि ऐसा न हो गृह युद्ध भी शुरू हो जाए और हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो जाए। परंतु अटल जी की योजनाबद्ध आज उस समय की जो सरकार थी, उसकी ताकत और उसके बाद नियंत्रण, कोई भी दंगा भड़काने जहां भड़का वहां नष्ट नाबूद कर दिया। सबसे ज्यादा संचलित बनारस, क्योंकि मैं वहां प्रत्यक्ष था, मैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ था तो मैं बनारस से। उस स्थिति में जो युद्ध विजय हुई और हम सबका गर्व से सीना चौड़ा हुआ, वह देश के इस कर्मठ शूरवीर योद्धाओं के द्वारा। तो आज 26 जुलाई को जो कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने देश के लिए समर्पित होना चाहिए। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो अपना भी प्रभु जो है वो देश की रक्षा के लिए पड़ेगा और हमारे गुरुकुल का जो एक छात्र होगा वो इस भाव से खड़ा होगा। यह उद्देश्य लेकर के आज उमेश जी और निपेश जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और जो इस यहाँ पर इसका प्रस्तुतिकरण, विषय की प्रस्तुतिकरण जो वीडियो थी वो बहुत ही गरिमामय और भावपूर्ण थी, जिससे कि हमारे हर बच्चे के मन में भारतीयता का भाव जगे और हम अपने देश के लिए समर्पित हमारे संघोष करेंगे। भारत माता की